the next problem, which is example 4-13, which is basically a three-dimensional problem. So we are going to use vector formulation in order to solve it. What we have to do is we need to replace these two couples acting on the pipe column by a resultant couple moment. So आपको जिस तरह फिगर में दिखाए गए हैं, दो अदद couples इस pipe assembly पे act कर रहे हैं. One is this couple of 150 Newton forces acting between points A and B, and the second one is a couple of 125 Newton forces acting between points C and D. So we need to find the resultant couple moment as a result of these two couples acting on the pipe assembly. Okay, starting with the vector formulation. जिस तरह अभी हमने इससे पहले बात की है, vector formulation के लिए we are going to calculate the couple moment using the cross product R cross F. So first of all, starting from the couple of 150 Newton forces, what should be R here? Is it going to be RAB or is it going to be RBA? जो मर्जी ले ले से बात सेम नहीं होगी सर. ओके, जो मर्जी ले लें. चलिए, आप AB की मदद से अगर इसको सॉल्व करना चाहते हैं, so you are going to define this position vector as RAB. इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट आप किसका लेंगे? 150 न्यूटन या -150 न्यूटन फोर्स का? 150. So let us define M1 as the couple moment due to this 150 न्यूटन फोर्स. और जिस तरह अभी बात हुई है, हम सिर्फ एक दफा चेक कर लेते हैं RAB क्रॉस F से इसको डिटरमिन करना, और फिर प्रोबेबली अगर हम रिवर्स ऑर्डर करते हैं तो देखेंगे कि हमारे इस कपल मोमेंट पे कोई फर्क तो नहीं पड़ा. फर्क पड़ना नहीं चाहिए. अच्छा, अगर मैं RAB वेक्टर की बात करूं तो व्हाट इज दिस RAB वेक्टर? कैन यू टेल मी? 0.4. 0.4, बट वेक्टर के लिए तो हमें डायरेक्शन भी चाहिए ना. 0.4 तो उसका मैग्नीट्यूड है. जी सर. So since this vector is directed along the positive y-axis, so I can write this RAB to be equal to 0.4j. So once I'm taking the cross product, I'm going to write ijk in the first row. The second row would represent the components of R. So it is going to be 0, 0.40. What about the third row? What does it represent? Force. Force. So 150 न्यूटन ये किस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट कर रही है? So positive k direction में एक्ट कर रही है. So I'm going to take it as 0, 0, 150. I hope that this determinant किस तरह मैंने इसकी रोज को फिल किया है, यार को क्लियर है? Yes sir. अच्छा, अब इसमें I को जब मैं करूंगा तो I के साथ क्या आएगा? .4 into 150, ऐसा ही है. Yes sir. Yes sir. Yes sir. Okay, so अगर मैं J और K की बात करूं तो वो दोनों जीरो होंगे because of these two zeros here. So once I'm going to solve it, it would comes out to be 60I. So this is going to be the moment produced by this 150 Newton force couple acting between points A and B. Now let us suppose कि आप इस RAB के बजाय आप RBA का इस्तेमाल कर रहे होते, यानी आप चाहते तो आप M1 जो है वो RBA क्रॉस -F से भी जो है वो कैलकुलेट कर सकते थे. अगर आप उस सूरत में कैलकुलेट करते तो अगेन द फर्स्ट रो वुड रिप्रेजेंट IJK, यानी आप चाहते तो इस डायरेक्शन में मोमेंट कैलकुलेट कर सकते थे R क्रॉस F लेके. RBA उस सूरत में क्या हो जाता? तो -0.4. तो 0 -0.40. व्हाट अबाउट फोर्स F? ये अब क्या हो जाती है? -150. 0, 0, -150. So once you expand it, again you are going to get the same 60I. So it does not depend कि आप किस डायरेक्शन में R को डिफाइन कर रहे हैं, लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि जिस डायरेक्शन में आप R ले रहे हैं उसी से आगे आप F का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे. ये नहीं हो सकता कि आप R ये वाला ले लें और उसका क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो इस फोर्स के साथ कर रहे हो. सो R से F की तरफ आपने क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो लेना होता है यूजिंग इन R क्रॉस F वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट. Is this point clear to all of you? Yes sir. चलें. So we have calculated the couple moment due to this first couple 150 Newton वाला जो था. Now moving on to the next couple which is 125 Newton force couple. इसके लिए मैं किस डायरेक्शन में R क्रॉस F लूंगा? कोई आइडिया? या किस डायरेक्शन में मुझे ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा?
वन कौन सा लिख ली सर? अगर मैं R जो है वो डिफाइन कर लूं RDC, तो उसका मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले लूंगा इस फोर्स के साथ, विच इज दिस पर्टिकुलर फोर्स. सो RDC क्रॉस F के साथ मैं कपल मोमेंट कैलकुलेट कर सकता हूं. ऑल्टरनेटली मैं ये भी कर सकता हूं कि इसको RCD वेक्टर ले लूं और फिर इस फोर्स के साथ क्रॉस प्रोडक्ट ले लूं. दोनों चॉइसेस मेरे पास हैं. आई कैन टेक एनी वन ऑफ दीज notation in order to find out the couple moment. Okay, now let us suppose कि मैं RDC के साथ इसको solve कर रहा हूं. So what is going to be this position vector RDC? So 0.3 I. So since this vector is directed towards the positive x-axis and it has a magnitude of 0.3, so I can write this as 0.3 I. Okay, what about this 125 Newton force? इसको मैं कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन में लिखना चाह रहा हूँ. So ये फोर्स किस प्लेन में एक्ट करती है? Sir 125 3/5. तो इसको जज करने के लिए अगर मैं इसका फ्रंट व्यू देखूं फ्रॉम दीज एरोज जो कि मैंने बनाए हैं, इसका फ्रंट व्यू किस तरह बना है कि आपके पास ये वाई प्लेन है, वाई एक्सिस है, ये जेड एक्सिस है, एंड दिस फोर्स इज बेसिकली डायरेक्टेड विद इन दिस वाई जी प्लेन. और जो स्मॉलर ट्राइंगल आपको गिवन है वो आपको गिवन है 3, 4 एंड 5. सो इसके कंपोनेंट्स अगर मैं बनाऊं तो वाई डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो 125 3/5 और z डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनेगा वो 125 4/5 बनेगा. ऐसा ही है. अच्छा, y कंपोनेंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? Sir पॉजिटिव positive. सर. z कंपोनेंट पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा? पॉजिटिव. z पॉजिटिव कैसे होगा? आप देखें ना, नेगेटिव को तो नीचे की तरफ है सर, नीचे की. हाँ नेगेटिव होगा. सो ओवरऑल वी आर गोइंग टू गेट दिस फोर्स F टू बी इक्वल टू 125 3/5 J, जो कि आपके पास बन जाएगा 125 इंटू 0.6. ये आपके पास सॉरी थोड़ा सा मैं गलत कर गया हूँ. लेट मी करेक्ट. जो y का कंपोनेंट में 4 नहीं है जी, y कॉलम. थोड़ा सा मैंने वो गलत लिख दिया था, ट्राइंगल गलत देखा था. तो ट्राइंगल यहाँ जो मैंने ये बनाया है वो थोड़ा सा करेक्ट कर लें. यहाँ लिखते हुए मैं इस ट्राइंगल को थोड़ा सा चेंज कर दिया था. बेसिकली जो y के साथ है वो आपके पास 4 है और ये 3 था और ये 5 था. तो आपके पास उसी हिसाब से 4/5 और 3/5 ये आ जाएगा. सो 125 इंटू 0.8 अगर हम करें तो ये आपके पास 100 आ जाएगा. सो 100J आपके पास y कंपोनेंट आ गया, माइनस 75 के आपके पास जो है वो z कंपोनेंट आ जाएगा. आई होप कि ये मिस्टेक जो है वो हर एक को समझ आ गई होगी जो मुझसे हो गई थी. ठीक है, क्लियर है? Is it clear to all of you now? Okay, now this couple moment M2 should be equal to RDC cross F. So आप वेक्टर फॉर्म में अगर इसको लिखना चाहें I J K, आपके पास कार्टेशियन वेक्टर आ जाएंगे. RDC जिस तरह अभी हमने कहा 0.3 I है तो 0.300 हो जाएगा. इसी तरह 0 100 और -75 हो जाएगा. So once you expand this determinant, आपके पास जो है वो इस सेकेंड कपल की वजह से जो मोमेंट आ रहा है वो आ जाएगा. मसलन अगर मैं I की बात करूं तो मेरे पास 0 आएगा. J की बात करूं तो क्या आना चाहिए? एक्सपेंड कर सकते हैं इस डिटर्मिनेंट को. जी, 0.3 इंटू -75. यस सर. सो इट इज गोइंग टू बी -22.5 आ गया. इसी तरह अगर मैं K की बात करूं तो K की 0.3 इंटू 100 विच इज 30. So what should be the resultant couple? MR. It should be the vector sum of M1 and M2. So आपके पास resultant couple आ जाएगा 60I plus 22.5J plus 30K. Is it clear to all of you? कोई point Yes, जो sir. आपको ना clear हो kindly पूछ सकते हैं अभी. सही है सर. इसकी जो डायरेक्शन होगी सर सेकंड कपल की सर, वो सर कपल की डायरेक्शन मतलब या सर सेकंड वाले की सर. देखिए आपके पास ये जो सेकंड कपल एक्ट कर रहे हैं, इट इज एक्टिंग
इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन, ये आपका जो प्लेन बन रहा है इसके परपेंडिकुलर एक्ट कर रही है, तो आपके पास इसका जो कंपोनेंट्स आ रहे हैं वो जे और के, दो कंपोनेंट्स आएंगे। यस सर। ठीक है, तो जे और के दो कंपोनेंट्स आपके आ रहे हैं। डायरेक्शन जज करना, देखें इसकी डायरेक्शन जज करना तो बहुत आसान है, जो पहला कपल था। वजह क्या है कि आपके पास ये जो प्लेन बन रहा है वो आपके पास ये वाला प्लेन बन रहा है, तो डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर आपकी जेड एक्सिस है, तो आपके पास ये कपल जो है मोमेंट एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में आ गया था। लेकिन ये वाला कपल चूंकि एंगल पे एक्ट कर रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन इस प्लेन के जो है वो परपेंडिकुलर होगी, सही तो सर। आपके पास वाई और जी डायरेक्शन में आ जाएगा। ये फोर्स को कैसे रिजॉल्व किया है ये हर एक के समझ आ गया है या नहीं? अगर आप चाहते तो इसमें ये सेकंड 125 न्यूटन वाली फोर्स जो शो की गई है उसको भी इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन इस सूरत में फिर आपको RCD डिफाइन करना पड़ता जो कि -0.3 आई हो जाता, और ये 125 न्यूटन की जो फोर्स है उसको आप इस स्मॉलर ट्राइंगल के साथ रिजॉल्व कर सकते थे इनटू द y एंड j कंपोनेंट्स। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई चीज जो ना समझ आई हो इस एग्जांपल में वो आप पूछ सकते हैं अभी, सो दैट वी कैन मूव ऑन टू द एक्सरसाइज प्रॉब्लम्स। ठीक है सर। चलें, so moving on to the exercise problems, which and starting with problem 4-87, एक हम एक्सरसाइज का 2D प्रॉब्लम कर लेंगे और एक हम जो है वो 3D प्रॉब्लम कर लेंगे एक्सरसाइज का। We need to determine the required magnitude of this force F if the resultant couple moment on the beam is to be equal to 0। कि आपके पास इस बीम के ऊपर दो अदर कपल्स एक्ट कर रहे हैं, one is a couple having forces of 5 kilonewton, the other one is a couple जिसमें forces आपके पास F और -F के तौर पे शो की गई हैं। The resultant couple acting on the beam is equal to 0। We need to determine कि वो क्या मैग्नीट्यूड होना चाहिए F का कि आपके पास ये रिजल्टेंट कपल जो है वो 0 आ जाए। ओके, सो स्टार्टिंग विद द स्केलर फॉर्मुलेशन, F और -F इसी तरह 5 किलो न्यूटन की जो फोर्सेस हैं, अब ये फोर्सेस वगैरह जो हैं वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप फाइंड कर सकते हैं इन फोर्सेस का। मसलन परपेंडिकुलर डिस्टेंस से क्या मुराद है, मैं कहूँ कि F और -F ये है, सो इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं 5 किलो न्यूटन वाली फोर्स की बात करूं तो 5 किलो न्यूटन वाली फोर्सेस ये हैं, इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये आ जाएगा। सो इज इट इजियर टू फाइंड दीज परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस? यस सर। सर वो नहीं सर, ये फाइंड जैसे बिल्कुल एंगल चेंज कर लेते हैं उसके कंपोनेंट निकाल लेंगे। So we can solve this problem using Varignon's theorem। Varignon's theorem क्या कहती है कि हम इन तमाम फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स की फॉर्म में रिजॉल्व कर लें। फॉर एग्जांपल ये जो 5 किलो न्यूटन की जो फोर्स है इसके जो कंपोनेंट्स में बनाऊं वो आपके पास ये दो कंपोनेंट्स आ जाएंगे इस 5 किलो न्यूटन फोर्स के, और इसी तरह जो दूसरी 5 किलो न्यूटन की फोर्स है इसके कंपोनेंट्स आपके पास ये आ जाएंगे। सो ये आपके पास दो फोर्सेस के बजाय चार फोर्सेस आ गई या दो कपल्स आ गए फ्रॉम दिस 5 किलो न्यूटन फोर्स। इसी तरह अगर मैं F और -F की बात करूं तो जो F फोर्स है उसके मैंने जो दो कंपोनेंट्स बनाए वो मेरे पास ये आ गए। इसी तरह जो -F फोर्स है इसके जब मैं कंपोनेंट्स बनाऊंगा तो मेरे पास ये कंपोनेंट्स जो है वो आ जाएंगे। सो वेरिग्नन्स थ्योरम की मदद से मैंने सबसे पहले तो इन तमाम फोर्सेस को इनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर लिया। अब बजाय मेरे पास दो कपल्स आने के मेरे पास चार कपल्स आ जाएंगे। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस सर। चलें, अब हम सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सिंस वी आर डूइंग द स्केलर एनालिसिस, सो वी आर गोइंग टू डिफाइन द counter clockwise couple moments as positive। So positive mr should be equal to summation m। एक एक करके हम तमाम कपल्स को देखते हैं, स्टार्टिंग विद द 5 किलो न्यूटन फोर्स कपल्स। 5 किलो न्यूटन की अगर मैं x कंपोनेंट की बात करूं तो वो कपल का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 5 टाइम्स 3/5, और इन दोनों कंपोनेंट्स के जो x कंपोनेंट है इन दोनों के दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? कैन यू आइडेंटिफाई इट फ्रॉम द फिगर? 0.5। Is it 0.5 or 0.5 plus 0.5? So 0.5 plus 0.5. So it is 0.5 plus 0.5 हो गया। और अगर मैं इसके डायरेक्शन की बात करूं तो ये जो डायरेक्शन है ये कौन सा डायरेक्शन आ रहा है, क्लॉकवाइज काउंटर क्लॉकवाइज? Counterclockwise.
काउंटर क्लॉकवाइज. सो वी आर गोइंग टू इंक्लूड अ पॉजिटिव साइन, या आप ना भी शामिल करें तो हम इसको पॉजिटिव मोमेंट ले रहे हैं. ओके, मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड कपल ऑफ दिस 5 किलोन्यूटन फोर्स, वो आपके पास आ जाएगा 5 टाइम्स 4/5, जो कि मैं वाई फोर्सेस की बात कर रहा हूँ. इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारे पास गिवन है विच इज 0.5. सो आपके पास ये 0.5 आ गया. और जहां तक ताल्लुक इनके डायरेक्शन का है, तो ये डायरेक्शन आपके पास क्या आ गया? क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? It is clockwise, so I'm going to include a negative sign here. I hope के ये दोनों कपल्स अरे को क्लियर है जो 5 किलोन्यूटन की फोर्स. सर इनके बीच में परपेंडिकुलर डिस्टेंस 3 मीटर नहीं होगा? 0.5 तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं. width है. आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं. इट शुड बी 3 मीटर्स. ठीक है, ये 3 मीटर्स जो आपको गिवन है. Is it clear to all of you now? Okay, so moving forward, ये आपके पास जो फोर्स F है, इसके हम दो कंपोनेंट्स की अगर बात करें तो स्टार्टिंग विद द x कंपोनेंट F cos 30, आपके पास ये x कंपोनेंट हो गया. और इन दोनों कंपोनेंट्स के दरमियान अगेन हमारे पास 0.5 प्लस 0.5 डिस्टेंस हो गया. और जहां तक ताल्लुक इसके डायरेक्शन का है, तो ये आपके पास डायरेक्शन क्या बनेगा? क्लॉकवाइज, काउंटर क्लॉकवाइज? क्लॉकवाइज सर. Clockwise, so I'm going to include a negative sign here. And finally, जो आखिरी मेरे पास आ गया है, it is going to be f sin of 30, जो कंपोनेंट्स f के y कंपोनेंट्स हैं. अगेन इनके दरमियान परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमें 3 गिवन है. और अगर मैं इसके साइन की बात करूं तो ये जो है वो आपके पास काउंटर ये क्लॉकवाइज. डायरेक्शन बनता है विच इज काउंटर क्लॉकवाइज. ओवरऑल आपके पास ये 4 कपल्स जो है वो एक्ट कर रहे हैं. 2 क्लॉकवाइज हैं, 2 काउंटर क्लॉकवाइज हैं. सो एल्जेब्रिकली आपने इन तमाम कपल्स की मूवमेंट का सम ले लेना है, टेकिंग काउंटर क्लॉकवाइज मूवमेंट्स एज पॉजिटिव. सो वंस यू सॉल्व इट, द ओवरऑल कपल मूवमेंट वुड कम्स आउट टू बी सॉरी ओवरऑल कपल मूवमेंट तो आपके पास 0 है. तो आपने इन चारों फोर्सेस के चारों मूवमेंट्स को 0 के बराबर पुट कर दिया. द ओनली अननोन थिंग हियर इज f. सो वंस यू सॉल्व इट, f would comes out to be 14.2 किलो न्यूटन मीटर. ये आपके पास वो फोर्स F है जो कि जब इतने मैग्नीट्यूड में इस डायरेक्शन पे अप्लाई की जाएगी तो द रिजल्टेंट कपल इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0. आई होप के दिस थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. कोई चीज जो आपको ना समझ आई हो काइंडली आप अभी पूछ सकते हैं. सर जी पूछें. सर ये 0.5 प्लस 0.5 ये जरा समझा दें, ये समझ देखिए, क्या है. लेट मी क्लियर द फिगर. मैं थोड़ा सा रफ कर लूं क्योंकि इस पे काफी कपल्स बन गए. चलें हम 0.5 को अगर समझने की कोशिश करें. देखिए, इसका जब मैं x कंपोनेंट बनाऊंगा 5 किलो न्यूटन वाली फोर्स का, तो वो इस डायरेक्शन में आएगा. इसी तरह ये वाला कंपोनेंट मेरे पास इस डायरेक्शन में आ गया. ये तो समझ आ गई ये बात आपको? यस सर. अच्छा, अब इस लाइन को अगर मैं एक्सटेंड करूं तो आपके पास जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस आता है इन दोनों लाइंस के बीच में, वो क्या आता है? ये ब्लू से मैंने शो किया हुआ है. ओके सर, आगे समझ में. अब ये डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 0.5 है, यहाँ से यहाँ तक भी 0.5 है. सो ओवरऑल इट इज गोइंग टू बी 0.5 प्लस 0.5. ठीक है. ओके सर. जी, एनी अदर क्वेश्चन रेलेवेंट टू दिस प्रॉब्लम 4-87 जो आप पूछना चाहें काइंडली अभी आप पूछ सकते हैं. Okay, so if you have no more question, let us move forward to a 3-dimensional exercise problem, which is problem 4-98. We need to determine the resultant couple moment of these two couples that acts on the pipe assembly. अब again आपको दो अदद couple show किए गए हैं. One is a couple जिसमें forces आपकी 35 न्यूटन वाली अप्लाई हो रही हैं. The other couple जो है उसमें forces आपकी 50 न्यूटन वाली जो है वो अप्लाई हो रही हैं. हमें रिजल्टेंट कपल फाइंड करना है एज अ रिजल्ट ऑफ दीज टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पाइप असेंबली. द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज गिवन टू अस एज 400 मिलीमीटर. तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये आपको 400 मिलीमीटर्स गिवन है. अगर हम मीटर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो 0.4 मीटर जो है ये डिस्टेंस आपको गिवन है. वी नीड टू एक्सप्रेस दिस रिजल्टेंट कपल मोमेंट एज अ कार्टेशियन वेक्टर. वो वैसे भी अगर हम r क्रॉस f वाले तरीके से फाइंड कर रहे हैं तो आपको ऑटोमेटिकली वो कार्टेशियन वेक्टर नोटेशन की फॉर्म में जो है वो मिल जाएगा. आई होप के द क्वेश्चन इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू. जी सर. चलें, अब इसमें चूंकि हमें वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट लेना पड़ेगा जिसके लिए प्रोबेबली हमें कुछ पोजीशन वेक्टर्स का इस्तेमाल करना पड़े. तो उन पोजीशन वेक्टर्स का इस्तेमाल करने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स की जरूरत होगी. सो स्टार्टिंग विद द ओरिजिन O, इसके कोऑर्डिनेट्स हमें 0 0 0 नोन है. Can you tell me the coordinates of point A? What should be the coordinates of point A? Sir, 350 0 0.
ओके सो 350 को अगर मैं मीटर्स में कन्वर्ट कर लूं, इट इज गोइंग टू बी 0.350 and 0. So these are going to be the position coordinates of point A. Moving on to point B, what should be the coordinates of point B? Can any one of you identify those coordinates? X coordinate में कोई change है? Sir, नहीं sir, 0, x 4 coordinate same sin रहेगा. 400 sin 30. Okay, so X coordinate would remain same as 0.35. So थोड़ा सा अगर हम point B की तरफ देखें, in order to move to point B from origin, we need to move this much of amount along the positive x-axis, which is 0.35. We need to move this much of amount along the negative y-axis, and finally this much of amount along the positive z-axis. So आपके पास ये जो y direction में arrow बन रहा है, ये कितना होगा? It is going to be d cos of 30, isn't it? Yes, sir. और जो z डायरेक्शन में एरो बन रहा है, ये क्या होगा? d sin 30. Yes sir. ठीक है. y डायरेक्शन में चूंकि नेगेटिव साइड पे जा रहे हैं, so this coordinate would be minus d cos 30 और z डायरेक्शन में d sin 30. So d की वैल्यू आपको नोन है, which is 400 millimeter. So once you put the value of d, the coordinates of point B would become minus 0.346. इसका y coordinates आ जाएगा, और अगर हम z coordinate की बात करें तो 0.2 इसका z coordinate आ जाएगा. Is this point clear to all of you? Yes. चलिए, प्रोबेबली शायद आपको पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स की भी जरूरत पड़ सकती है. सो अगर हम पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स की बात करें तो व्हाट शुड बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी? सर बी वाले कोऑर्डिनेट्स होंगे बस y से इसमें 0.25 ऐड होगा. Sir 0.35 एक्स में, वही सर. सो एक्स में आपने 0.25 ऐड कर लिया, सो 35 प्लस 25 0.6 हो जाएगा. सो आपका सिर्फ और सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी y और z कोऑर्डिनेट वही रहेंगे, 0.346 विद अ नेगेटिव साइन एज वेल एज 0.2. सो आई होप के कोऑर्डिनेट्स ए बी सी के तमाम लोगों को क्लियर हैं. ओके, सो मूविंग फॉरवर्ड, आपने 35 किलो न्यूटन जो कपल फोर्सेस हैं, इनके लिए कौन सा आर इस्तेमाल करेंगे फॉर फाइंडिंग द कपल मोमेंट आर क्रॉस एफ? मर्जी है सर. मर्जी है, चले मर्जी क्या कहती है, मैं इस ए बी का इस्तेमाल कर सकता हूँ. ए भी कर लें सर. चलिए ठीक है. सो आई एम गोइंग टू फाइंड आउट द रिजल्टेंट कपल मोमेंट एम आर बाय फर्स्ट टेकिंग समेशन आर क्रॉस एफ. क्योंकि एक से ज्यादा फोर्सेस या कपल्स एक्ट कर रहे हैं, तो समेशन आर क्रॉस एफ जो है उसका इस्तेमाल कर लूंगा. और सबसे पहले हमने स्टार्ट किया है इस आर ए बी से, सो इट इज गोइंग टू बी आर ए सी सॉरी आर ए बी क्रॉस 35 के लूंगा या माइनस 35 के लूंगा? Sir सर 35. सर प्लस 35 के लेंगे. प्लस 35 के. वजह क्या है कि जिस तरह भी बात हुई थी, आर बी की तरफ डायरेक्टेड है जी, आर से एफ की तरफ हम ये क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. सो आर ए बी क्रॉस 35 के. अगर आप आर बी ए इस्तेमाल कर रहे होते तो देन यू कैन यूज आर बी ए क्रॉस माइनस 35 के. इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ये पॉइंट क्लियर है रेक को? जी सर. अच्छा, रिपीट चलिए, what about, देखें आपके पास दो ऑप्शंस हैं यहाँ. अगर आप आर ए बी वेक्टर ले रहे हैं पोजीशन वेक्टर, तो उसका क्रॉस प्रोडक्ट आप लेंगे 35 के साथ, क्योंकि अभी हमने कहा है कि आर से एफ की तरफ हम क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. ऑल्टरनेटली आप ये भी कर सकते थे कि आप आर बी ए वेक्टर डिफाइन कर देते. उस सूरत में आप आर से एफ की तरफ जब जाते तो आर बी ए क्रॉस माइनस 35 के ले सकते थे. तो हमेशा आर से एफ की तरफ आप क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं. ठीक है, Yes, sir. चलें. अब ये वेक्टर तो क्लियर हो गया कि आपने आर ए बी क्रॉस एफ ले लिए. व्हाट अबाउट द नेक्स्ट कपल मोमेंट? उसके लिए मैं कौन सा वेक्टर डिफाइन करूंगा? पोजीशन वेक्टर. तो सर बीसी कर लें. आर यू श्योर कि बीसी नहीं होना नहीं चाहिए? सॉरी माजरा सर. एनी अदर आइडिया कोई? उसके लिए भी सर ए बी कर लें. देखिए, उसके लिए आपके पास चॉइस है. आपके पास अगेन चॉइस क्या है कि आपने बेसिकली इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान कोई एक पोजीशन वेक्टर जो है वो डिफाइन करना है. आपका जो पोजीशन वेक्टर ए बी है, ये भी तो ऑटोमेटिकली उन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन में से पास हो रहा है. अगर मैं 50 वाली फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन देखूं
तो ये मेरे पास लाइन ऑफ एक्शन आ गई है दोनों फोर्सेस की। तो ये जो आर ए बी है, क्या ये इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान नहीं लाई कर रहा? बिल्कुल है सर। ठीक है, तो मैं इस आर ए बी या आर बी ए का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ऑल्टरनेटली अगर मैं चाहूँ तो ये आर ए सी या आर सी ए का इस्तेमाल भी कर सकता हूँ। ठीक है, जी सर। अच्छा, इसके अलावा भी मेरे पास कोई चॉइस है पोजीशन वेक्टर के लिए? Do I have any other option for the AC? position vector? सर ओ सी हो सकता है। सर ए सी नहीं हो सकता। क्या ये नहीं हो सकता ओ बी या बी ओ? जी सर हो सकता है। इसी तरह ओ सी भी ओ हो सी सकता है। और सी ओ ये भी हो सकता है। तो इन चारों सेट्स में से कोई सा भी एक पोजीशन वेक्टर में इस्तेमाल कर सकता हूं। इट वुड गिव मी द सेम सोल्यूशन। इज दिस पॉइंट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? मुझे बेसिकली एक पोजीशन वेक्टर चाहिए जो दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के दरमियान पड़ रहा हो। वो कोई सा भी एक वेक्टर हो सकता है। क्लियर है सबको? आई होप के तमाम लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। काइंडली अगर किसी की अभी भी कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग दिस पोजीशन वेक्टर्स तो वो पूछ सकता है। सर तो ये जो चारों केसेस हैं ये फर्स्ट केस में भी एप्लीकेबल होंगे ना? देखिए, फर्स्ट केस में एप्लीकेबल इसलिए नहीं होंगे कि फर्स्ट केस में ये लाइन ऑफ एक्शन है दोनों फोर्सेस की, तो इसके दरमियान या ये वाला पोजीशन वेक्टर होगा या ये वाला पोजीशन वेक्टर होगा, आर बी ए या आर ए बी। इसके अलावा और कोई पोजीशन वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, ओके सर। तो आपने हमेशा आर क्रॉस एफ जब भी कपल की मोमेंट कैलकुलेट करने हो तो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ दोस टू फोर्सेस के दरमियान कोई भी एक पोजीशन वेक्टर डिफाइन कर लें। अब यहाँ चूंकि ऑलरेडी हमने आर ए बी फाइंड किया हुआ है तो वाई यूजिंग सम अदर वेक्टर मैं इसी आर ए बी का इस्तेमाल कर लेता हूँ ताकि मुझे जो है वो दूसरा वेक्टर डिफाइन ना करना पड़े। सो देयरफॉर आई एम गोइंग टू टेक द सेम आर ए बी। क्रॉस प्रोडक्ट में किसके साथ लूंगा? 50 के साथ, माइनस 50 के साथ। -50। सो माइनस 50 आई के साथ क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा बिकॉज अगेन आपकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन ये है तो आर से एफ की तरफ हम जा रहे हैं। अगर मैं आर बी ए लेता तो आर बी ए के लिए फिर मैं ये 50 आई ले सकता था। क्लियर है ये चीज? ओके, सो ये आपके पास दो अदर क्रॉस प्रोडक्ट आ गए हैं। सो यूजिंग दीज क्रॉस प्रोडक्ट्स इन डिटर्मिनेंट फॉर्म आई जे के आपके पास आ गया। आर ए बी आप जब डिफाइन करेंगे ये आपके पास पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हैं, ये आपके पास पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट हैं। सो अकॉर्डिंगली आर ए बी के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे? 0 माइनस 0.346 और 0.2 और 35 के है तो 0 0 35। सो दिस इज गोइंग टू बी द फर्स्ट डिटर्मिनेंट। इसी तरह अगर मैं सेकंड डिटर्मिनेंट की बात करूं आई जे के आर हम सेम यूज कर रहे हैं। सो माइनस 0.346 और 0.2 आपके पास ये आ गए और 0 लिख दिया मैंने। आपके पास जो फोर्स है वो माइनस 50 आई है। सो इट इज गोइंग टू बी माइनस 50 0 0। आई होप कि ये दोनों डिटर्मिनेंट सर को क्लियर हैं। So once you expand these two determinants, you are going to get mr, which is the resultant moment, to be equal to minus 12.11 I minus 10 J minus 17.3 K Newton meter. Clear है सबको?